students, good morning. So we are continuing our chapter number 6, object oriented concept. We have learned about the concept of object oriented programming, OOP. Then we have learned about the object, then we have learned about the class, then we have learned about the class diagram, then we have learned the 4 P's for the visibility, private, protected, public and package and their symbols. They are most important. Then we have learned that encapsulation, it gives the protection to the data and methods. Then we have learned about the data abstraction. It is hiding the implementation details. Then we have learned about the ADT, abstract data type. Then messaging, the call a method जो आपने create किया है उसको call करवाना, that is messaging. Then we have learned about the polymorphism, it means many forms. किसी एक मेथड या किसी एक फंक्शंस के बहुत सारे फॉर्म, यानी एक ही प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा मेथड्स आप यूज कर रहे हो, एक से ज्यादा फंक्शंस अगर आप यूज कर रहे हो, दैट इज नॉन एज द पॉलीमॉर्फिज्म. तो वी हैव लर्न अबाउट द पॉलीमॉर्फिज्म. Then in the polymorphism we have seen about the overloading system. If you are using more than one functions or method, that is the function or method overloading. Then we have learned that operators, so many operators if you are using in your class, then it is the operator overloading. Now our next topic is aggregation and compositions. When objects of one class are composed of object of other class, it is called aggregation or composition. It represents has a or a part of relationship between classes. For example, motherboard is a part of computer. जो दो क्लास है उसके बीच में जो रिलेशनशिप जो है, यानी कि एक क्लास जो है दूसरे क्लास के अंदर से बना हुआ है, उसके जैसा बना हुआ है, यानी उसके बीच में हैज और पार्ट ऑफ रिलेशनशिप है, दैट इज नॉन एज द एग्रीगेशन और कंपोजिशन. एक एग्जांपल भी दिया, जैसे मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर सीपीयू में, तो दैट इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर. As we know, computer is composed of many parts like motherboard, screen, keyboard and mouse. A screen itself may be a class with attributes like length, width and models. Similarly, motherboard may be defined as a class with attributes like model and company. When we define class computer, it will contain attributes that are object of class motherboard and screen. Thus, it implies containment. अगर आप कंप्यूटर की बना रहे हो तो उसमें भी दो पार्ट और भी बनेंगे, दो क्लास बनेंगे मदरबोर्ड के थ्रू, क्योंकि उसके खुद के भी एट्रीब्यूट्स है. जैसे स्क्रीन है तो उसके लेंथ, विड्थ, हाइट, ये सब डिस्प्ले है, ये सब उसका एक पूरा ऑब्जेक्ट बनेगा, पूरा क्लास डिजाइन होगा. देन मदरबोर्ड है तो उसके अंदर उसकी जो मॉडल क्या क्या कंपनी का नाम है, तो ये सब से उसका भी क्लास बनेगा. और वो सब रिलेशनशिप होगी किसके साथ? कंप्यूटर के क्लास के साथ, यानी कि वो सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. लेट अस मॉडिफाई क्लास पर्सन. Discuss before. First of all, we have defined two new classes, name and address. दो क्लास हम बनाने वाले. देखिए फिगर 6.5 के अंदर ये जो एक नेम का क्लास बना है, दूसरा एड्रेस का क्लास बनाया है. Now name has attributes first name, middle name, last name, and the class address has attributes of house, street, then city, then state and pin code. Now let us modify class person and change the name of the attributes name and address NM and address EADDR respectively. The data type attributes NM is address, class name and address respectively. Thus class person contains object of class name and address. देखिए यहाँ पर पर्सन का एक क्लास मैंने बनाया जिसके अंदर नेम है, जिसमें जितने भी है, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन का है तो उसकी जितनी भी डिटेल्स है, डिटेल्स में नाम में क्या होता है? उसका फर्स्ट नेम, उसका मिडिल नेम और उसका लास्ट नेम. ये हमने सबका एक में लिख दिया, उसको नाम दे दिया नेम. फिर एक दूसरा क्लास बना है जिसके अंदर सभी के एड्रेस आ गए, जिसके अंदर उसका हाउस है, स्ट्रीट है, सिटी, स्टेट, पिन कोड ये रख दिया. और तीसरा जो मेन क्लास जो बन रहा है हमारा पर्सन, उसके अंदर वो दोनों क्लास को हम कॉल करवा के साथ में ज्वाइन कर देंगे, रिलेशनशिप दे देंगे. यानी एनएम बनाया जिसके अंदर नेम क्लास आएगा, एडब्ल्यूडीआर बनाया उसके अंदर एड्रेस क्लास आएगा. यानी कि पर्सन नाम के क्लास के अंदर मुझे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या उसका एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. उसकी जगह पर दूसरे जो क्लास ऑलरेडी बने हैं उसका डेटा मैं यहाँ पे कॉल करवा लूंगा, उसका डेटा मैं यूज कर लूंगा. इफ यू रिमेंबर अबाउट द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हमने डीबीएमएस स्टैंडर्ड 11 में पढ़ा था. तो स्टैंडर्ड 11 में डीबीएमएस के अंदर हमने डीबीएमएस में बेस्ड सॉफ्टवेयर सीखा है, दैट इज रिलेशनल मॉडल. नाउ व्हाट इज रिलेशनल मॉडल? रिलेशनल मॉडल क्या होता है कि दो टेबल है उसके बीच में रिलेशनशिप दी जाए. क्यों रिलेशनशिप देती है? क्योंकि एक का डेटा और दूसरे का डेटा दोनों साथ में मिला के यूज कर सके. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि स्टूडेंट का हमने बनाया था,
अब स्टूडेंट का हमने बनाया तो स्टूडेंट में उसका स्टैंडर्ड, डिवीजन, फर्स्ट नेम, इंटर, ये सब डिटेल्स आ गए। अब फीस की डिटेल बनाए, अब फीस के अंदर भी सभी कुछ लिखना पड़ेगा आपको। फीस के अंदर भी स्टूडेंट का स्टैंडर्ड कौन सा है, उसका डिवीजन कौन सा है, उसका रोल नंबर, जीआर नंबर लिखना पड़ेगा, उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सब यूज करना, सब लिखना पड़ेगा। उसकी जगह पे हम लोगों ने क्या किया था कि फीस का टेबल जो बनाया था उसमें एक कॉमन फील्ड जीआर नंबर को रखा था, बाकी फीस की डिटेल रखी थी, और वो जीआर नंबर और जो दूसरा स्टूडेंट का जीआर नंबर है दोनों के बीच में रिलेशनशिप दे दी। इससे हुआ क्या कि फीस के क्लास के अंदर मुझे वो सब डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब भी मुझे क्वेरी में यूज करता था, जब भी मुझे रिपोर्टिंग चाहिए, तो मैं स्टूडेंट के और जो है दोनों के बीच में रिलेशनशिप होने की वजह से क्या होगा, तो स्टूडेंट का डिटेल्स जो है उसके जो फॉर्म टेबल है उसके अंदर से स्टूडेंट की डिटेल ले लेना है कि भाई उसका जीआर नंबर क्या है, क्लास क्या है, स्टैंडर्ड, डिवीजन, ये सब दे लेना है उसमें, और फीस डिटेल दोनों मिला के साथ में। सेम ऐसा ही कुछ कंसेप्ट यहाँ पे रिलेशनशिप का दिया गया है, जिसमें क्लास पर्सन विथ एट्रीब्यूट्स ऑफ क्लास नेम एंड एड्रेस पूरा उसके साथ ऐसा डिजाइन करके दिया गया है। नाउ एग्रीगेशन वर्सेस कंपोजिशन क्या है, दोनों में क्या फर्क है वो देखते हैं। दोनों रिलेशनशिप के लिए यूज होते हैं, बट क्या फर्क है वो समझिए। एग्रीगेशन रिप्रेजेंटिंग नॉन एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लास। In aggregation, the class that forms a part of honor class can exist independently. The life of an object of the part class is not determined by the honor class. For example, although the motherboard is a part of computer, it can exist a separate item independent of the computer. Thus, motherboard is not exclusive associated with the computer. Similarly, object address may be shared by two or more persons, as can be seen in the figure 6.6. Address is not exclusive to any one person. देखिए यहाँ पे है नेम है तो उसमें नेम में आ गया भाई श्याम मोहन, वे उसमें एड्रेस हो तो एड्रेस में आ गया पूरा ये एड्रेस डिटेल्स आ गया। देन उसमें दूसरा पर्सन है तो दूसरे पर्सन के अंदर दूसरी डिटेल्स आ गया, उसका एड्रेस आएगा। अब एड्रेस एक ही है तो एक दूसरे में भी आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो। तो इस तरह से सिस्टम उसमें यानी नॉन एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप देगा, वो एक्सटर्नल नहीं है, उसके साथ जुड़ा हुआ ही रिलेशनशिप दे रहा है यहाँ पे। तो दैट इज द एग्रीगेशन। Basic aggregation is represented using an empty symbol next to the whole class and shown in the figure 6.7. Now composition. Composition represents exclusive relationship between two classes. दोनों में ये फर्क है, याद रखिएगा। एग्रीगेशन भी रिलेशनशिप दे रहा है, कंपोजिशन भी रिलेशनशिप दे रहा है, बट एग्रीगेशन गिविंग द नॉन एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप एंड कंपोजिशन रिप्रेजेंट्स एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस. Composition is a strong type of aggregation where the lifetime of the part class depend on the existence of the honor class. If an object of aggregating class is deleted, its part class object also will get deleted. For example, when an object of class person is deleted, the object of class name is also deleted. Name is associated exclusive with single person as shown in figure 6.6. देखिए यहाँ पे देखिए नेम है वो अलग से पूरा बनाया गया है। Composition relationship result in the field diamond symbol next to the whole class is shown in the figure. ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, याद रखेगा। ये जो डायमंड जैसा शेप दिख रहा है रिलेशनशिप के अंदर पर्सन और नेम के अंदर, तो फिल डायमंड है वो कंपोजिशन है और एम्प्टी डायमंड है वो एग्रीगेशन का उसमें दिया गया है। यानी ये जो है पूरा एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप देगा उसके अंदर, नेम के अंदर। इसमें ये होता है कि अगर पर्सन के अंदर जो है कुछ भी एक भी पार्ट अगर डिलीट कर देते हैं हम, तो उसके साथ जो है वो एग्रीगेटिंग क्लास भी डिलीटेड हो जाएगा। स्पार्स क्लास ऑल्सो भी विल गेट डिलीटेड। फॉर यहाँ पे दिया एग्जाम तो पर्सन का अगर डिलीट कर दूंगा क्लास तो उसके साथ जो नेम है जो कंपोजिशन में जो जुड़ा हुआ वो भी डिलीट हो जाएगा उसके अंदर, जबकि एग्रीगेशन में वो डिलीट नहीं होता, इस तरह से होता है। तो देखिए यहाँ पे एग्रीगेटेड सब्जेक्ट पार्ट क्लास, एग्रीगेटेड ऑनर होल क्लास एंड एग्रीगेटेड सब्जेक्ट पार्ट क्लास। एग्रीगेटिंग एंड एग्रीगेटेड ये पार्ट है यहाँ पे, ये याद रखिएगा आप यहाँ पे। In the given example, a relationship between class person and class name is a composition relation, whereas a relationship between class person and class address is aggregation relationship. Address may be shared by more than one person. So when a person is deleted, the corresponding name object is deleted, but address cannot be deleted. ये एक एड्रेस सेंड हो सकता है, जैसे सिटी का तो सिटी सूरत है तो नेम एक पर्सन जो डिलीट होता है तो उसका नाम सब डिलीट, बस उसकी सिटी है या एरिया है तो अब उस एरिया के तो बहुत सारे पर्सन हो सकते हैं, तो वो डिलीट नहीं होगा, जबकि नेम डिलीट हो जाएगा। तो ये पॉसिबल है, तो वो कंपोजिशन है तो कंपोजिशन में डिलीट हो जाएगा, बट एग्रीगेशन में डिलीट नहीं होगा। तो इस तरह से पूरा रिलेशनशिप उसके अंदर क्रिएट होता है। एड्रेस में भी शेयर बाय मोर देन वन पर्सन। So when a person is deleted, the corresponding name object is deleted, but address cannot be deleted.
एक नोट दिया ये है, द क्लास दैट कंटेन्स ऑब्जेक्ट ऑफ अदर क्लास इज नॉन एज द ऑनर क्लास or her class or aggregating class. For example, class person shown in the figure 6.6 is an aggregating class. The class that is contain an honor class is known as the subject class or part class or aggregated class. For example, the class's name and address shown in the figure 6.6 are aggregated class. अब ये समझिए, एक और एग्जांपल मैं आपको इसमें दे रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल डीबीएमएस की बात कर, आपने लास्ट में डेटाबेस पढ़ा था, तो डेटाबेस का आपको आइडिया है। तो डेटाबेस में हमने ऐसा बनाया था कि भाई उसके अंदर जो है इनहेरिटेड जो है उसमें पूरा पार्ट इंटीग्रेटेड वाला पार्ट हमने रखा था। तो उसमें क्या होता था कि भाई यहाँ पे अगर कोई भी मैं डिलीट कर रहा हूँ तो उसमें से भी डिलीट हो जाना चाहिए, ऐसे सिस्टम्स हमने बनाए थे। बट जहाँ पे रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे जो रिलेशनशिप कंसेप्ट जो दिया है कंपोजिशन और एग्रीगेशन का, तो कंपोजिशन का रिलेशनशिप क्या होगा किसी के साथ, वो एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप, यानी कि वो अगर मेन अगर क्लास नहीं है, मेन क्लास यहाँ पे देखिए जो मेन क्लास है उसको अगर उसको ऑनर क्लास या हॉर क्लास या एग्रीगेटिंग क्लास बोला जाता है, वो अगर डिलीट हो जाता है तो उसके साथ जुड़ा हुआ ये कंपोजिशन वाला जो रिलेशनशिप वाला पार्ट है वो भी डिलीट हो जाएगा। जैसे नेम है तो वो डिलीट हो जाएगा। बट अगर आपने एग्रीगेशन दिया है, एग्रीगेशन यानी कि नॉन एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप दिया है, अब नॉन एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप कहाँ पे देंगे, तो अगर वो एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हो, हम ऐसी सिस्टम बनाई है वहां, तो वहां पे हो जाए। फॉर एग्जाम्पल स्कूल की बात करें हम, तो स्कूल के अंदर स्टूडेंट है, तो कोई क्लास में से स्टूडेंट लेफ्ट हो रहा है तो वो स्टूडेंट लेफ्ट हो जाएगा, उसको जहां जहां पे भी डेटा है वो लेफ्ट हो जाएगा। बस इसका मतलब ये नहीं, मीनिंग ये नहीं कि बाकी उसके साथ जुड़े हुए जो टेबल वगैरह बाकी जो डेटा है वो भी डिलीट हो जाएगा, यानी कि वो स्टैंडर्ड डिलीट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके अंदर उसकी डिटेल्स है तो उसकी डिटेल्स में जो स्टैंडर्ड है वो रिमूव हो जाएगा, बट स्टैंडर्ड का जो पूरा क्लास है, पूरा टेबल है, वो कभी डिलीट नहीं होगा। तो इस तरह से कंपोजिशन और एग्रीगेशन के जो है वो रिलेशनशिप बता रहे दो क्लास के बीच में। फिर से एक बार बता देता हूं मैं आपको, एग्रीगेशन वर्सेस कंपोजिशन हमने देखा कि रिलेशनशिप मोस्ट आईएमपी थिंग क्या क्या है वो समझिए इसके अंदर। कि पहले तो ऑब्जेक्ट वन क्लास कंपोज ऑफ ऑब्जेक्ट अदर क्लास, इट इज कॉल्ड एग्रीगेशन और कंपोजिशन, एक ये आता है एग्जाम के अंदर। देन क्या रिलेशनशिप बिटवीन दोनों क्लास के बीच में होती है, तो एग्रीगेशन और कंपोजिशन वो हैज और अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप देता है उसके अंदर, वो भी याद, ये मोस्ट आईएमपी थिंग है, ये याद रखिएगा। देन यहाँ पे हमने ये देखा कि भाई यहाँ पे जो पार्ट बनाया उसके अंदर एग्रीगेशन और कंपोजिशन का, तो क्या है, तो एग्रीगेशन रिप्रेजेंट नॉन एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी एक आपको याद रखना है, मोस्ट आईएमपी पॉइंट में आता है ये भी। फिर यहाँ पे उसके जो एग्जाम्पल्स दिए तो वो भी आपको समझने की जरूरत है। देन यहाँ पे हमने कंपोजिशन का देखा, कंपोजिशन रिप्रेजेंट एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस, दो जो क्लास है उसके बीच में एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप होता है वो कंपोजिशन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, याद रखेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटिंग नॉन एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस, तो उसमें आएगा एग्रीगेशन, एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस, तो दैट इज कंपोजिशन। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, दोनों डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा। कंपोजिशन है वो स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ एग्रीगेशन है, ये भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो ये भी याद रखिएगा उसके अंदर। फिर ये भी एक पार्ट है कि भाई एग्रीगेटेड क्लास जो है वो अगर डिलीटेड होता है तो उसके साथ जो एग्रीगेटेड क्लास है उसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो क्लास भी डिलीट हो जाएगा। बट वो कहाँ पे होगा, जब कंपोजिशन वाली रिलेशनशिप होगी तब। एंड मोस्ट आईएमपी हर बार बहुत बार आ चुका एग्जाम में कि फील्ड डायमंड है, फील्ड डायमंड शेप जो है वो कंपोजिशन रिलेशनशिप दिखा रहा है, और जो एम्प्टी डायमंड है देखिए यहाँ पे तो वो एग्रीगेशन रिलेशनशिप दिखा रहा है। तो ये भी एग्जाम में आता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। देन एक और चीज है यहाँ पे जो नोट में दी है वो भी कि दैट द क्लास दैट कंटेन्स ऑब्जेक्ट ऑफ द अदर क्लास इज नॉन एज द ऑनर क्लास, दूसरे क्लास के अंदर उसके साथ जो रिलेशनशिप दिया है तो वो मेन क्लास होता है हमारा ऑनर क्लास, हॉल क्लास, या फिर उसको एग्रीगेटिंग क्लास बोला जाता है। और जो क्लास जो कंटेन इन ऑनर क्लास, जो क्लास हमने यहाँ से उसमें से ले रहे हैं उसमें ले रहे हैं, तो वो जो क्लास हुआ उसका, तो दैट क्लास इज नॉन एज, उसको सब्जेक्ट क्लास बोला जाता है, पार्ट क्लास बोल सकते हो, या फिर एग्रीगेटेड क्लास बोल सकते हो उसको। यहाँ पे एग्जाम्पल में भी आपने देखा है कि कौन सा एग्रीगेटिंग क्लास है, कौन सा एग्रीगेटेड क्लास है, वो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया गया है। तो आज यहाँ तक कंपोजिशन और एग्रीगेशन की थियरी तक ही चलाते हैं, तो यहाँ तक देखते हैं। आई एम हिमांशु चौहान, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे, ऑलवेज बी सेफ एंड हैप्पी, हरि ओम।